Very good morning to everyone. I am Dr. Rashmi Dwivedi, Associate Professor in Mechanical Engineering Department, Sister Gandhinagar, Bhopal. We are discussing Unit 2, Governor Mechanism. In this unit, we have talked about various type of centrifugal governors. We have already derived in expressions for the height of the governors. We have talked about sensitiveness of governor, stability of governor, what is isochronous governor, hunting of governor. We have already talked about power of governor and effort of governor. So in today's lecture, we will solve few numericals which is based on Crowell governor and Hartnell governor. You can see in this diagram, there are three governors. This is Porter governor, this is Crowell governor, and this is Hartnell governor. Porter governor, the fly balls, these are the fly balls. These fly balls attached at the intersection of upper and lower arm. This is Crowell governor. In this diagram, you can see the fly balls attached at the extension link of the lower arm. So if this type of arrangement we will see, and then this is a Crowell governor and this is a Hartnell governor configuration. Here you can see there is a spring which is in compression and these are two bell cranks levers which are at right angles. These are rollers which moves up and down with the movement of the fly ball. So these three types construction, we can see that if we see this type construction, then this is a Porter governor. If this type construction, then this is a Crowell governor. And if there is a spring and this type construction, then this is a Hartnell governor. So let's start with the numerical. The first numerical is the following particulars refers to a Crowell governor with open arms. Length of all arms 200 mm. Distance of pivot of arms from the axis of rotation 40 mm. Length of extension of lower arms to which each ball is attached 100 mm. Mass of each ball is 6 kg and mass of the center load is 150 kg. If the radius of rotation of the balls is 180 mm when the arms are inclined at an angle of 40 degree to the axis of rotation, find the equilibrium speed for the above configuration. This is the complete numerical. So basically this is a case of Crowell governor. Why this is a case of Crowell governor? Because you can see the balls are attached. Here it is mentioned the balls are attached at the extension of the lower arms. So we know that if the balls attached at the extension of the lower arm, then this is the case of the Crowell governor. So न्यूमेरिकल से क्लियर है कि ये आपका Crowell governor का केस है. अब Crowell governor में क्या होता है कि पहली चीज कि आपकी जो फ्लाई बॉल होती है वो एक्सटेंशन आर्म्स पे होती है. किसके? लोअर आर्म्स के एक्सटेंशन आर्म पे या एक्सटेंशन लिंक पे होती है. तो ये आपको गिवन है कि इसकी लेंथ जो एक्सटेंडेड आर्म है उसकी लेंथ कितनी है 100. इट इज मेंशन्ड हियर. फ्लाई बॉल्स मास इज 6 kg. इट इज आल्सो मेंशन्ड. And mass of the center load, because Crowell governor is a gravity control type governor. In gravity control type governor, you know that in gravity control governor, a central load is attached at the sleeve. So mass of the central load is 150 kg. It is given. If the radius of rotation of the ball is 180 mm. We know that for particular radius of rotation, there is a one equilibrium speed. So हमें वो equilibrium speed find out करनी है जो इस particular radius of rotation के लिए calculate करेंगे. तो बेसिकली ये अरेंजमेंट पूरा यहाँ पे ये हाफ ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ द गवर्नर. हियर इज ओनली हाफ पोर्शन ऑफ द गवर्नर. You can see this is a half portion of the Crowell governor.
this distance, it is also mentioned length of the all arms, the lower arms and upper arm. The lower arms and upper arms length is given, which is 200 mm, which are equal. All the length of all the arms are equal. Distance of the pivot of arms from the axis of rotation. एक्सिस ऑफ रोटेशन हम किसे कहते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब गवर्नर के एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब जो आपकी लोअर आर्म्स और अपर आर्म्स जिस पॉइंट पे पाइवोटेड हैं, वो पॉइंट्स आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने mm पे है? 40 mm पे. ये आपको गिवन है कि 40 mm पे, ये यहाँ पे गिवन है कि डिस्टेंस ऑफ द पाइवोट ऑफ आर्म्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन 40 mm, ये आपको गिवन है. अब देखिए, फ्लाई बॉल में दो फोर्सेस लगेंगे. फर्स्ट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेकेंड इज द वेट ऑफ द फ्लाई बॉल. ये दो फोर्सेस लगेंगे और जो आपका लोअर आर्म का पिवोट पॉइंट होगा, वहां पे आपका जो वेट एक्ट करेगा वो हाफ ऑफ द सेंटर लोड होगा. क्योंकि हमने सिमेट्री ड्रॉ की है तो यहाँ पे हाफ पोर्शन कंसीडर करें तो वेट भी कितना होगा? हाफ होगा, विच इज इक्वल टू mg/2. तो ये आपका पूरा कॉन्फ़िगरेशन है. रेडियस ऑफ रोटेशन आपको गिवन है कि फ्लाई बॉल आपकी जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से किस डिस्टेंस पे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होगी, दैट इज रेडियस ऑफ रोटेशन. ठीक है, तो ये आपका 180 mm ये गिवन है यहाँ पे कि रेडियस ऑफ रोटेशन इज 180 mm, ये गिवन है. और इंक्लाइन जो व्हेन द आर्म्स आर इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री, जो आपकी अपर आर्म है और जो लोअर आर्म है वो वर्टिकल से कितने एंगल बना रही है? 40 डिग्री. ये भी आपको गिवन है न्यूमेरिकल में. तो आपको इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको क्या फाइंड आउट करनी है? इक्विलिब्रियम स्पीड फाइंड आउट करनी है. हम ऑलरेडी फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं जो कि हाइट ऑफ द गवर्नर के टर्म्स में है और इक्विलिब्रियम स्पीड के टर्म्स में है. तो हम डायरेक्टली या तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या हम इंस्टेंटेनियस सेंटर के अबाउट मोमेंट लेके हम मोमेंट इक्वेशन से, इक्विलिब्रियम में अगर कोई बॉडी होगी तो हम आई पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लेंगे और सेम वही एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा. तो उससे हमारी वो पर्टिकुलर स्पीड आ जाएगी जिस स्पीड के लिए वो कॉन्फ़िगरेशन डिजाइंड है. तो यहाँ पे देखिए हमने नोटेशंस यूज किए हैं. दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट जे, दिस इज एफ, दिस इज एच, दिस इज जी, दिस इज पी, दिस इज क्यू. So basically this is distance, horizontal distance of the pivoted point from the axis of rotation, which is 40 mm. Capital M is the mass of the central load, which is given 150 kg. Small m is the mass of the fly ball, which is 6 kg. And B से लेके F तक की डिस्टेंस जो है, एक्सटेंडेड आर्म जो है, लोअर आर्म जो एक्सटेंडेड हुई है जहाँ पे फ्लाई बॉल अटैच्ड है, विच इज 100 mm. ये भी आपको गिवन है. तो ये सारी चीजें गिवन है, आपने डायग्राम में अपन ने मेंशन कर लिया है. अब हम कैलकुलेट करेंगे इक्विलिब्रियम स्पीड. तो हमने एज्यूम कर लिया लेट कैपिटल N बी द इक्विलिब्रियम स्पीड. तो हमको इक्विलिब्रियम स्पीड N फाइंड आउट करनी है इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के लिए. अब ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपकी ज्योमेट्री होगी, ये एंगल 40 है तो ये एंगल भी 40 डिग्री होगा, ये एंगल 40 डिग्री होगा क्योंकि ये एंगल 40 डिग्री है. तो हम ऑलरेडी जब हमने प्रोएल गवर्नर का डेरिवेशन किया था तो हमने ये डिस्कस किया था ज्योमेट्री के बारे में. अब हम ये जो बेसिकली ये आपका जनरल डायग्राम होता है प्रोएल गवर्नर का. ठीक है, अब इस प्रोएल गवर्नर के केस में जो हमने स्पीड के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था वो हमारा था n स्क्वायर इज इक्वल टू fm अपॉन bm इनटू स्मॉल m प्लस कैपिटल M, वेयर स्मॉल m इज द मास ऑफ द फ्लाई बॉल एंड कैपिटल M इज द मास ऑफ द स्लीव और सेंटर लोड भी कह सकते हैं, मास ऑफ द सेंटर लोड. स्मॉल m अगेन मास ऑफ द फ्लाई बॉल and 895 by h, where h is the height of the governor. In the diagram it is mentioned it is h. So this formula is valid when q is equal to 1. That means कि जो आपका अल्फा बीटा गिवन है, अल्फा बीटा मतलब आपकी अपर आर्म एंड लोअर आर्म वर्टिकल से कितना एंगल ड्रॉ कर रहे हैं, अगर वो एंगल इक्वल है तो हमारा ये फॉर्मूला वैलिड होगा. अगर वो एंगल इक्वल नहीं है तो हमारा ये फॉर्मूला वैलिड होगा. दैट मीन्स n स्क्वायर इज इक्वल टू fm अपॉन bm. fm कौन सी डिस्टेंस है? यहां से यहां तक की डिस्टेंस. bm बॉल के सेंटर से m पॉइंट तक की डिस्टेंस. स्मॉल m प्लस कैपिटल M by 2 इंटू 1 प्लस q
upon small m into 895 by h. This is valid when q is not equal to 1. That means q is equal to 10 बीटा upon 10 अल्फा. यहाँ पे 10 बीटा और 10 अल्फा मतलब अल्फा बीटा दोनों अलग एंगल्स हैं. अब अगर हमारा जो गवर्नर है वो इक्विलिब्रियम पे है, तो अगर इक्विलिब्रियम में हमें प्रूफ करना है, दैट मीन्स कि हमें ये जो आई पॉइंट है, या इस डायग्राम में देखिए ये जो आई पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट हमें क्या लेना पड़ेगा, मोमेंट लेना पड़ेगा. तो मोमेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो गवर्नर है वो इक्विलिब्रियम पे है. तो हम इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे. तो अगर हम मोमेंट लेना है हमें, तो हमें सारी डिस्टेंसेस भी पता होनी चाहिए. तो हम ज्योमेट्री से पहले सारी डिस्टेंसेस निकाल लेते हैं. तो डिस्टेंसेस में देखिए हमें क्या क्या निकालना है. फर्स्ट हमारे पास एफ एच की वैल्यू नहीं है और हमारे पास पी एच की वैल्यू नहीं है. एफ एच की वैल्यू हमें क्यों कैलकुलेट करनी है, क्योंकि हमें टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस गिवन है 180. हमें एच जी भी पता है और हमें जे एफ नहीं पता है, बट हमें ये अगर पता चल जाएगा तो हम इससे टोटल ये माइनस कर देंगे तो हमारा जे एफ आ जाएगा. ठीक है, तो इसलिए हमको पहले एफ एच कैलकुलेट करना है, देन हमें पी एच कैलकुलेट करना है. पी एच हमें क्यों कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिमेट्री है, तो जितना पी एच होगा उतना ही आपका एच डी होगा और उतना ही आपका एफ एन होगा और जे एम होगा. सिमेट्री है, दिख रहा है डायग्राम में आपको, तो इसलिए हमें ये भी कैलकुलेट करना है, ये भी. तो देखिए यहाँ पे अगर पी एच की वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करनी है, तो पी एच क्या होगा, पी एच बताइए. पी एच की वैल्यू हो जाएगी 200 cos 40 डिग्री और एफ एच की वैल्यू हो जाएगी 200 sin 40 डिग्री. तो हम ये दोनों वैल्यूज निकालेंगे. देखिए तो पी एच की वैल्यू हो गई पी एफ इंटू कॉस 40 डिग्री. कौन सी डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, पी एच की वैल्यू, तो ये कॉस आएगा कॉस 40 डिग्री. पी एफ क्या है, आपकी अपर आर्म की जो लेंथ है विच इज 200 mm. तो ऐसे हम निकाल लेंगे पी एच की वैल्यू और सिमिलरली हम एफ एच की भी वैल्यू निकाल लेंगे पी एफ इंटू साइन 40 से. तो ये दोनों हमारी वैल्यूज आ जाएंगी. पी एफ की वैल्यू 200 है, कॉस 40 की डिग्री 40 डिग्री 0.766, तो ये हमारा आ जाएगा 153.2 mm. तो मीटर में अगर कैलकुलेट करेंगे तो 0.1532 मीटर. ये हमारी आ गई पी एच की वैल्यू. एफ एच की वैल्यू हम निकाल लेंगे. एफ एच की वैल्यू देखिए एफ एच ये वैल्यूज निकालेंगे तो दिस इज इक्वल टू 200 पी एफ इंटू साइन 40. तो पी एफ साइन 40 से देखिए पी एफ की वैल्यू 200 है, साइन 40 डिग्री 0.643, तो ये आ जाएगा 128.6 mm. अब हम निकालेंगे जे एफ. जे एफ क्या है, देखिए जे एफ हमारी ये वाली डिस्टेंस है. अब हमें हॉरिजॉन्टल ये डिस्टेंस पता है, जे से जी तक की डिस्टेंस पता है विच इज 180 mm. हमें एफ एच पता चल गया, एच जी पता चल गया, तो हम क्या करेंगे, जे जी माइनस एफ एच माइनस एच जी. अगर ये करेंगे तो हमारी जे एफ की वैल्यू आ जाएगी. तो यहाँ से देखिए हमने जे एफ की वैल्यू निकाल ली, तो ये आ जाएगा 180 माइनस 40 माइनस 128.6, क्योंकि 180 हमारा किस में, एमएम में है, तो हमने सारे पैरामीटर्स एमएम में पुट कर दिए, तो हमारे ये आ गया 11.4 mm. अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये वैल्यू बी जे. हमें बी जे क्यों निकालना है, क्योंकि हमें ये लेंथ भी चाहिए, ये डिस्टेंस भी चाहिए, बिकॉज जब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम मोमेंट कैलकुलेट करेंगे आई पॉइंट के अबाउट, तो हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगी. तो हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हमें जे एम तो पता चल जाएगा हमें, जो हम निकाल चुके हैं पी एच. अब हमें लेकिन बी जे की वैल्यू नहीं पता, तो बी जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे. अगर ये 90 डिग्री है तो बी जे इज इक्वल टू होगा बी एफ का होल स्क्वायर माइनस जे एफ का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो वो आ जाएगी हमारी बी जे की वैल्यू. तो यहाँ से देखिए हम बी जे की वैल्यू निकाल लेंगे, बी एफ स्क्वायर माइनस जे एफ स्क्वायर. तो बी एफ है आपका 100, ऑलरेडी आपको गिवन है, एक्सटेंडेड आर्म की लेंथ दी हुई है, और ये हमने अभी कैलकुलेट कर लिया है जे एफ की वैल्यू. तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 99.4 mm. 99.4 mm आपकी बी जे की वैल्यू आ जाएगी. अब बी एम निकालना हमको टोटल लेंथ, तो
बी एम निकालना है। यहाँ पे देखिए हमें क्या चाहिए, बी से एम तक की, तो बी जे प्लस जे एम, और जे एम की जगह हम एफ एन भी पुट कर सकते हैं या एच डी भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये इक्वल है सिमेट्री की वजह से। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया जे एम की वैल्यू 153.2, तो ये आपका आ जाएगा 252.6 mm। ये क्या आ गई हमारी वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अबाउट पॉइंट टू, सॉरी अबाउट पॉइंट आई। अब हमें क्या चाहिए, देखिए हमें इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना है बेसिकली। तो मोमेंट लेने के लिए हमें सारे जो हमारे फोर्सेस हैं उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो हमें एफसी से तो मिल गई, दूसरा एक लोड है हमारा एम जी, तो mg/2 जो है उससे अगर हमें निकालना है तो हमें ये तो पता चल गया है m से d तक की डिस्टेंस, बट हमें im नहीं पता है। अब im हमें कैलकुलेट करना है तो हमें कैसे निकालना पड़ेगा, देखिए यहाँ से सिमेट्री है अगर, तो id इज इक्वल टू होगा 2nd या 2in, ये पुट कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए im इज इक्वल टू है in माइनस nm, in माइनस nm, यहाँ पे देखिए in माइनस mn, in हमें im चाहिए तो in माइनस mn। अब in की वैल्यू कितनी होगी, देखिए in की जगह हम लिख सकते हैं fh माइनस jf। क्यों लिख सकते हैं, ज्योमेट्री से देखिए क्लियर है, in की वैल्यू होगी fh के बराबर, और fh इज इक्वल टू हम पुट कर सकते हैं nd। तो यहाँ पर वैल्यू fh की वैल्यू कितनी आई है, तो यहाँ पे fh की वैल्यू आई थी 128.6 और jf की वैल्यू थी 11.4, तो यहाँ से हमें im की वैल्यू आ गई 117.2 mm। सिमिलरली हम id की वैल्यू निकाल लेंगे, id की वैल्यू in प्लस nd, यहाँ पे देखिए in प्लस nd, तो in प्लस nd या 2in भी कर सकते हैं क्योंकि सिमेट्री है, तो 2in। अब डायग्राम से आप देखिए क्लियर है, in या nd, तो nd की जगह हम fh पुट कर सकते हैं, fh हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम fh की विच इज 128.6, तो ये आ जाएगा हमारा 257.2 mm। तो id भी आ गया हमारा, im भी आ गया, और हमारी वर्टिकल bm भी आ गया। तो ये तीनों वर्टिकल डिस्टेंस आ गई हैं। तो मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इंस्टेंटेनियस सेंटर के अबाउट हम मोमेंट ले लेंगे, तो देखिए अगर मैं इंस्टेंटेनियस सेंटर के अबाउट मोमेंट लूंगी तो fc इंटू बी एम, fc इंटू बी एम, इसके कारण क्या आएगा एंटी क्लॉकवाइज। अब वेट ऑफ द फ्लाईबॉल की वजह से जो आएगा वो mg इंटू im, तो ये क्या होगा क्लॉकवाइज, और वेट ऑफ द स्लीव या वेट ऑफ सेंटर की वजह से mg/2 की वजह से जो आएगा वो आएगा वो भी आएगा क्लॉकवाइज। तो fc अगर हम मोमेंट लेंगे तो देखिए क्या आएगा, fc इंटू बी एम इज इक्वल टू mg इंटू im प्लस mg/2 इंटू id। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, हमने सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली है। fc की जगह हम क्या पुट करेंगे, अभी हम बाद में fc की जगह वैल्यू fc की वैल्यू पुट करेंगे। bm हमने कैलकुलेट किया है, bm इज इक्वल टू कितना आया 252.6, m मास ऑफ द फ्लाई बॉल विच इज 6 kg, g की वैल्यू 9.81 पुट कर देंगे, im हमने कैलकुलेट कर लिया 117.2 प्लस mg/2, कैपिटल M की वैल्यू 150 है, g की वैल्यू 9.81, id की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली हमने जो कि 257.2 आई है। तो ये fc की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो fc इज इक्वल टू आ जाएगा 196.125 बाय 252.6, तो यहाँ से fc की वैल्यू आ जाएगी 776.4 न्यूटन। अब fc इज इक्वल टू क्या होता है, वी नो दैट fc इज इक्वल टू होता है m ओमेगा स्क्वायर r, m इज द मास ऑफ द फ्लाई बॉल, क्योंकि fc क्या है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो किस पे एक्ट हो रहा है, फ्लाई बॉल पे एक्ट हो रहा है। तो फ्लाई बॉल के जो मास है वो है 6 kg, ओमेगा की वैल्यू 2πn/60, तो 2πn/60 मतलब n की वैल्यू हमें अभी नहीं पता, हमें फाइंड आउट, यही स्पीड हमें तो फाइंड आउट करनी है कि किस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के लिए
हम वो अरेंजमेंट डिजाइन किया है, तो उसी के करस्पॉन्डिंग हमें ऑप्टिमम या इक्विलिब्रियम स्पीड फाइंड आउट करनी है। और आर जो कि रेडियस ऑफ रोटेशन है वो भी हमें गिवन है 180 mm, तो मीटर में पुट करेंगे तो 0.18। अब यहाँ पे देखिए सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमारा ये वैल्यू क्या आया, 776.4 इज इक्वल टू 0.012 एन स्क्वायर। तो यहाँ से हमारी एन स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, फाइनली हमें एन की वैल्यू मिल जाएगी। दैट मीन्स हमें उस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें इक्विलिब्रियम स्पीड पता चल जाएगी कि जब हमारी फ्लाई बॉल एक्सटेंडेड आर्म 100 mm पे अटैच्ड है लोअर आर्म से, तो उस टाइम पे हमारी इक्विलिब्रियम स्पीड कितनी है, 254 आरपीएम। तो इस तरीके से हम प्रोएल गवर्नर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। डिफरेंट चीज़ें दी होंगी, लाइक आपको पाइवोट पॉइंट की डिस्टेंस दी हुई होगी, अल्फा बीटा डिफरेंट होंगे तो हम दूसरा फार्मूला लगाएंगे। अल्फा बीटा यहाँ पे सेम थे क्योंकि हमारी सिमेट्री थी, तो हमने सिंपल फार्मूला लगा लिया। अगर ये अल्फा बीटा चेंज होते तो हमारा पूरा फॉर्मूला भी चेंज हो जाता वहाँ पे। तो बेसिकली ये इस तरीके से हम आपकी इक्विलिब्रियम स्पीड को फाइंड आउट करेंगे। अब हम सेकेंड न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे विच इज बेस्ड ऑन द हार्टनेल गवर्नर। हार्टनेल गवर्नर स्प्रिंग लोडेड टाइप गवर्नर होता है। ये एक सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर है, स्प्रिंग लोडेड टाइप का सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर है ये। तो क्वेश्चन है आपका, ए हार्टनेल गवर्नर हैविंग ए सेंट्रल स्लीव स्प्रिंग एंड टू राइट एंगल्ड बेल क्रैंक लीवर्स moves between 290 rpm and 310 rpm। देखिए जब भी गवर्नर की हम बात करते हैं उसमें एक मिनिमम स्पीड और एक मैक्सिमम स्पीड दी होती है। मतलब वो एक मिनिमम पोजीशन और मैक्सिमम पोजीशन जो आप कहते हैं वो पर्टिकुलर स्पीड के करस्पॉन्डिंगली पोजीशन होती है। तो दो पोजीशन होती है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे स्लीव दो स्टॉपर्स के बीच मूव करता है। तो मिनिमम उस स्टॉपर की टॉप मोस्ट पोजीशन को हम बोलते हैं कि मैक्सिमम स्पीड की पोजीशन है वो, और बॉटम मोस्ट पोजीशन को हम बोलते हैं मिनिमम स्पीड की पोजीशन है। तो उसी के करस्पॉन्डिंगली यहाँ पे हमारी दी हुई है 290 आरपीएम एंड 310 आरपीएम। दैट मीन्स मिनिमम स्पीड आपकी जो है वो 290 आरपीएम है और मैक्सिमम 310 आरपीएम है। फॉर ए स्लीव लिफ्ट ऑफ 15 mm, जो आपकी स्लीव है वो टोटल कितनी मूव कर रही है, 15 mm, ये आपको गिवन है। The sleeve arms and the ball arms are 80 mm and 120 mm। अब बिकॉज ये आपका हार्टनेल गवर्नर है, हार्टनेल गवर्नर में मैंने डायग्राम में अभी आपको दिखाया कि हार्टनेल गवर्नर स्प्रिंग लोडेड टाइप का गवर्नर होता है। इसमें दो बेल क्रैंक लीवर अटैच्ड होती हैं। बेल क्रैंक लीवर की दो आर्म्स होती हैं, वर्टिकल आर्म्स एंड हॉरिजॉन्टल आर्म। तो वर्टिकल आर्म से क्योंकि आपकी फ्लाई बॉल अटैच्ड होती है तो हम इसलिए बोलते हैं बॉल आर्म कहते हैं या आपका वर्टिकल आर्म कहते हैं। सिमिलरली जो आपकी हॉरिजॉन्टल आर्म होती है बेल क्रैंक लीवर की, वो आपकी रोलर से अटैच्ड होती है, तो हम उसको बोलते हैं रोलर आर्म बोलते हैं या हॉरिजॉन्टल आर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे स्लीव आर्म्स एंड द बॉल आर्म्स लिखा हुआ है बिकॉज जो आपका रोलर होता है वो आपकी स्लीव से कनेक्टेड होता है, इसलिए हम उसको स्लीव आर्म भी बोलते हैं। The sleeve arms and the ball arms are 80 mm and 120। That means horizontal आपकी 80 mm है और vertical आपकी 120 mm है। The levers are pivoted at 120 mm from the governor axis and the mass of each ball is 2.5 kg। जो फ्लाई बॉल का मास है वो 2.5 kg है। The ball arms are parallel to the governor axis at the lowest equilibrium speed। लोएस्ट होती है, हाईएस्ट होती है। तो जब आपका जो बॉल आर्म्स है दैट मीन्स जो वर्टिकल कंपोनेंट है बेल क्रैंक लीवर का वो पैरेलल है रेडियस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन के, जब आपकी स्पीड क्या है, मिनिमम स्पीड है। तो मिनिमम स्पीड के केस में वो पैरेलल है एक्सिस ऑफ रोटेशन की। ये कंडीशन आपको यहाँ पे मेंशन की हुई है। आपको डिटरमाइन क्या क्या करना है, लोड्स ऑन द स्प्रिंग एट द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट इक्विलिब्रियम स्पीड। दैट मीन्स आपको दोनों ही इक्विलिब्रियम स्पीड पे स्प्रिंग फोर्स आते हैं। इसमें हार्टनेल गवर्नर के केस में आपके स्प्रिंग फोर्स आते हैं, तो मिनिमम और मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंगली वो स्प्रिंग फोर्स कैलकुलेट करना है हमें, और स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल s वो कैलकुलेट करना है हमें। तो
हम ऑलरेडी इसका भी फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं। सेम जो फॉर्मूले में हमने डिराइव किया था उसी को यहाँ पे न्यूमेरिकल के टर्म्स में यहाँ पे आपको वैल्यूज गिवन है, स्मॉल m, कैपिटल M, n1 n2 गिवन है आपको, और आपको जो आपकी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आर्म है जिसको हम बॉल आर्म्स एंड स्लीव आर्म्स या कहते हैं, तो उसकी लेंथ दी हुई है, दैट मीन्स x और y दिया हुआ है। तो सिमिलरली हम इसको इक्वेट करते हैं डेरिवेशन से। तो देखिए यहाँ पे n1 को हमने अज्यूम किया है, गिवन क्या क्या है, n1 विच इज लोअर स्पीड या लोएस्ट स्पीड विच इज 290 rpm। तो n1 के करस्पॉन्डिंगली हम ओमेगा 1 निकाल लेते हैं 2 pi n by 60 से। तो यहाँ से 30.4 हमारा रेडियन पर सेकेंड आ गया ओमेगा 1। n2 हमारा दिया हुआ है 310 rpm, तो इसके करस्पॉन्डिंगली हम ओमेगा 2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं विच इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू n2 by 60। तो यहाँ से आ जाएगा 32.5 रेडियन पर सेकेंड। ये हमारा n1 n2 आ गया, ओमेगा 1 ओमेगा 2 आ गया। अब यहाँ पर देखिए इसको अगर हम जैसा कि डेरिवेशन में हमने सारे नोटेशंस यूज किए थे, तो h हमारा क्या था, स्लीव का लिफ्ट था स्मॉल h विच इज 15 mm गिवन है। y हमारी हॉरिजॉन्टल आर्म थी या रोलर आर्म थी जो बेल क्रैंक लीवर की थी, वो हमारी 80 mm है। x वर्टिकल आर्म है या बॉल आर्म है, तो वो हमारा 120 mm गिवन है। r इज द रेडियस ऑफ रोटेशन, तो वो भी गिवन है आपका विच इज 120 mm 0.12, और स्मॉल m इज द मास ऑफ द फ्लाई बॉल। तो इतना कंटेंट हमें ऑलरेडी न्यूमेरिकल में गिवन है। अब हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, लोड्स निकालना है। अब हमें बाकी सारी चीजें दी हुई हैं, स्पीड दिया हुआ है, बाकी सारी चीजें गिवन है आपको, तो आपको सिर्फ लोड कैलकुलेट करना है। कौन से लोड कैलकुलेट करना है, स्प्रिंग में जो लोड लग रहा है। अब हार्टनेल गवर्नर के केस में आपकी स्प्रिंग इनिशियली किस में होती है, कंप्रेशन में होती है। तो जो आपकी स्प्रिंग होती है जब वो मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाती है तो वो कंप्रेस्ड होती है। तो जब हम फर्स्ट अगर मिनिमम पोजीशन की बात करें तो मिनिमम तो उसमें हम बोलते हैं इनिशियल कंप्रेशन, और अगर हम मैक्सिमम स्प्रिंग फोर्स की बात करें विच इज करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम स्पीड, तो हम कहते हैं कि ये आपकी मैक्सिमम क्या कह सकते हैं, फाइनल कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग है। जैसे इनिशियल कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग और फाइनल कंप्रेशन। तो हमें अभी तो इसमें हमें सिर्फ स्प्रिंग फोर्सेस निकालना है और स्मॉल s की वैल्यू निकालनी है। तो हमने स्टिफनेस को स्मॉल s से हम डिनोट करेंगे। बेसिकली ये अरेंजमेंट होता है आपका किसका, हार्टनेल गवर्नर का। ये आपकी स्प्रिंग होती है जो कंप्रेशन में होती है। ये आपको दो अरेंजमेंट दिख रहे हैं, जो बेल क्रैंक लीवर होता है या ये R से डिनोट करें, मतलब ये रोलर्स हैं जो यहाँ पे मूव करते हैं। ये आपके फ्लाई बॉल्स हैं जो इनर एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं। ये स्लीव है, स्लीव का मूवमेंट डिपेंड्स करता है कि आपकी स्पीड कैसी है। स्पीड बढ़ती है तो स्लीव अपर डायरेक्शन में मूव करेगी, तो ये आपका रोलर भी अपर डायरेक्शन में जाएगा। जब स्लीव नीचे आएगी तो ये बॉल अंदर की तरफ जाएगी, तो ये रोलर नीचे की तरफ जाएगा। तो ये अरेंजमेंट होता है दोनों स्पीड्स पे। मिनिमम में देखिए आपका जब आपकी स्पीड मिनिमम होगी तो ये स्लीव जो है वो नीचे की डायरेक्शन में आएगी। जब ये स्लीव नीचे की डायरेक्शन में आएगी तो ये जो रोलर लगा है वो भी नीचे आएगा। तो जब ये नीचे आएगा तो देखिए ये R1 कहाँ आ गया, नीचे आ गया थोड़ा सा, और ये आपकी फ्लाई बॉल अंदर की तरफ आ जाएगी, क्योंकि हमारा अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा वो ऐसा खच जाएगा। तो ये अरेंजमेंट है मिनिमम पोजीशन के करस्पॉन्डिंगली। सिमिलरली अगर हमारी जो स्पीड बढ़ जाएगी तो स्पीड इंक्रीज होने पे हमारी ये स्लीव अपर डायरेक्शन में मूव करेगी। जब ये स्लीव अपर डायरेक्शन में मूव करेगी तो ये रोलर भी ऊपर की तरफ जाएगा। तो जब ये रोलर ऊपर की तरफ जाएगा तो ऑब्वियसली ये हमारी आर्म जो है, ये जो वर्टिकल आर्म है, ये इंक्लाइंड हो जाएगी किससे, वर्टिकल से। तो उस टाइम पे हमारी फ्लाई बॉल थोड़ा सा यहाँ पर आ जाएगी इस डायरेक्शन में। तो ये दोनों अरेंजमेंट हमने ड्रॉ कर रखे हैं। देखिए R1 मिनिमम स्पीड के करस्पॉन्डिंगली रेडियस ऑफ रोटेशन है, और R2 जो है वो मैक्सिमम स्पीड के करस्पॉन्डिंगली रेडियस ऑफ रोटेशन है। अब यहाँ पे स्मॉल r क्या शो कर रहा है, बेसिकली दिस O पॉइंट इज द फल्क्रम। यहाँ पे दो बेल क्रैंक लीवर लगे हुए हैं देखिए, तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये लीवर अटैच्ड है तो उसको हम बोलते हैं फल्क्रम। अब इस फल्क्रम की एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ फल्क्रम फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन विच इज फिक्स्ड बेसिकली। तो ये R जो है वो आपकी ऑलरेडी न्यूमेरिकल में गिवन है।
तो ये दो कंडीशंस हो गई हैं। अब इसमें एक चीज और आती है कि ऑब्लिगेटिव इफेक्ट को हम नेग्लेक्ट करते हैं। ऑब्लिगेटिव इफेक्ट बेसिकली ये होता है कि जो थीटा एंगल बना रहा है आपका, ये जो वर्टिकल आर्म है, वर्टिकल से थीटा एंगल जो बना रही है, या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जो थीटा एंगल बना रही है, ये एंगल्स बहुत स्मॉल होते हैं। तो जब ये एंगल्स बहुत स्मॉल होंगे तो चेंज इन द लेंथ ऑफ द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल आर्म्स विल नॉट चेंज। सो क्या बेसिकली अगर ऑब्लिगेटिव इफेक्ट को नेग्लेक्ट करना है तो हमें यहाँ पे x1 इज इक्वल टू x लेना पड़ेगा और y1 इज इक्वल टू y लेना पड़ेगा। तो ये दोनों कंडीशंस हैं। अब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अगर हमने एज्यूम कर लिया कि लेट कैपिटल S1 एंड कैपिटल S2 विद द स्प्रिंग लोड एट द लोएस्ट एंड हाईएस्ट इक्विलिब्रियम स्पीड, क्योंकि हमें यही कैलकुलेट करना है। अब हमने दोनों कॉन्फ़िगरेशन के लिए डायग्राम बना लिया। डायग्राम A is for the lowest position and diagram B is for the highest position। अब लोएस्ट पोजीशन के केस में ये आपको गिवन है कि लोएस्ट पोजीशन में आपका जो फ्लाई बॉल है, जो आपकी वर्टिकल फ्लाई बॉल, जो वर्टिकल बेल क्रैंक लीवर की वर्टिकल आर्म होती है या बॉल आर्म होती है, वो कैसी है, पैरेलल है एक्सिस ऑफ रोटेशन के। ये आपको गिवन है मिनिमम स्पीड के केस में। तो मिनिमम स्पीड के केस में r इज इक्वल टू r1 है और r आपको गिवन है 120 mm। तो ये आपको गिवन है ऑलरेडी, क्योंकि r क्या है, बेसिकली फलक्रम से डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन की। कौन सी डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो ये आपको गिवन है 120। अब यहाँ पर 120 ये गिवन है। अब ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल आर्म है या रोलर आर्म है बेल क्रैंक लीवर का, उसकी भी लेंथ आपको गिवन है। तो हॉरिजॉन्टल आर्म या रोलर आर्म लेंथ y इज 80 mm गिवन है, और x विच इज वर्टिकल आर्म और बॉल आर्म जिसको हम कहते हैं, वो भी हमें गिवन है x इज इक्वल टू 120 mm। ये आपको गिवन है ऑलरेडी न्यूमेरिकल में। और ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा फ्लाई बॉल में। तो इसका डायरेक्शन मैंने ये शो किया है, FC1 से डिनोट करेंगे हम इसको। ये तो हो गई बात लोएस्ट पोजीशन की। सिमिलरली अगर हम हाईएस्ट पोजीशन के लिए बोले तो हाईएस्ट पोजीशन के केस में अगर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो डिनोट करेंगे हम FC2 से। रेडियस ऑफ रोटेशन को डिनोट करेंगे R2 से। सिमिलरली इनिशियली mg प्लस S1/2 होगा मिनिमम स्पीड में, mg प्लस S2/2 होगा मैक्सिमम स्पीड के केस में। अब जैसा कि लिफ्ट ऑफ द स्लीव मतलब आपकी स्लीव कितनी ऊपर जाती है, तो वो कब जाएगी, जब आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। तो जब हाईएस्ट स्पीड पे जो बेसिकली लिफ्ट ऑफ द स्लीव है, दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल h विच इज इक्वल टू 15 mm। ये भी आपको न्यूमेरिकल में गिवन है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे x2 दिख रहा है आपको, y2 दिख रहा है, ये बेसिकली x है और ये आपका y है। तो ये कंडीशन हो जाएगी मैक्सिमम के केस में, क्योंकि मैक्सिमम के केस में गिवन नहीं है कि आपकी जो बॉल आर्म है वो पैरेलल है एक्सिस ऑफ रोटेशन में, सिर्फ ये मिनिमम के केस में गिवन है। तो इस तरीके से दो डायग्राम्स आपके बनेंगे हाईएस्ट और लोएस्ट पोजीशन के लिए। अब अगर आपकी जो बॉल आर्म्स है वो पैरेलल है गवर्नर एक्सिस के लोएस्ट इक्विलिब्रियम स्पीड पे, और वो है कितनी लोएस्ट इक्विलिब्रियम स्पीड, विच इज 290 rpm। तो r इज इक्वल टू R1 120 mm ये गिवन है आपको। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स के लिए हमें पहले तो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि आप स्प्रिंग फोर्स कैसे कैलकुलेट करोगे। तो हमें फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला बेसिकली हमने डिराइव किया था जब हमने हार्टनेल गवर्नर का डेरिवेशन किया था। तो देखिए, इस फॉर्मूले में कैपिटल mg ये आपको गिवन है, कैपिटल m का वैल्यू आपको गिवन है, g की वैल्यू आपको पता है, S1 हमें कैलकुलेट करना है, और 2FC1 दैट मीन्स सेंट्रीफ्यूगल, FC1 क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट मिनिमम स्पीड। x और y क्या है, आपकी वर्टिकल आर्म ऑफ बेल क्रैंक लीवर और हॉरिजॉन्टल आर्म ऑफ बेल क्रैंक लीवर, ये आपको गिवन है। तो ये कौन सी कंडीशन है, जब हम ऑब्लिगेटिव इफेक्ट को निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो ऑब्लिगेटिव इफेक्ट को निग्लेक्ट करना मतलब हमारी x y जो है वो चेंज नहीं होगी पोजीशन के बेस पे। तो ये बेसिकली आपका हो गया। यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे S1 की वैल्यू। अब यहाँ पे सबसे पहले लेकिन FC1 क्या है, FC1 कैलकुलेट हमें करना है। देखिए, तो यहाँ पे FC1 क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस में लग रहा है, फ्लाई बॉल पे लग रहा है। तो आपको फ्लाई बॉल की कंडीशन गिवन है, m दिया हुआ है, स्मॉल m की वैल्यू ω1 आपने कैलकुलेट कर लिया है और R1 भी आपको गिवन है।
तो ये तीनों की वैल्यूज आपको गिवन है, आप ऑलरेडी इसमें पुट करेंगे तो आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू पता चल जाएगी विच इज Fc1. नाउ लेट अस फाइंड द रेडियस ऑफ रोटेशन एट द हाईएस्ट. सिमिलरली हमने यहाँ पे लोएस्ट के लिए किया है, अब हम हाईएस्ट के लिए करेंगे. तो हाईएस्ट कितनी है आपकी N2 विच इज 310 RPM. The position of the ball arm at the highest equilibrium speed is shown in figure. यहाँ पे देखिए आपने डायग्राम में देख लिया है, ये पोजीशन है इनकी. तो इसके करस्पॉन्डिंगली हम सिमिलरली निकाल लेंगे. अब हमें R2 नहीं पता है, हमें R1 तो पता था, बट हमें R2 नहीं पता है. तो हमें R2 कैसे कैलकुलेट करना है? जब हमने हार्टनल गवर्नर का डेरिवेशन किया था तो हमने ये एक्सप्रेशन भी डिराइव किया था. तो ये एक्सप्रेशन आया था हमारा उससे, जो आपका थीटा की वैल्यू हमने पुट की थी, साइन थीटा की वैल्यू को इक्वल किया था, तो हमारा ये एक्सप्रेशन आया था. तो h इज इक्वल टू था, स्मॉल h इज इक्वल टू R2 माइनस R1 इंटू y बाय x. यहाँ पे y पता आपको, x पता, R1 पता है, h भी पता है, तो R2 आपका यहाँ से आ जाएगा. अब ये R2 की वैल्यू आप FC2 में रख दीजिए, m ओमेगा 2 स्क्वायर इंटू R2. तो यहाँ से आपका आ जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. कौन सा? एट मैक्सिमम स्पीड. FC2 की वैल्यू आपको आ गई, तो FC1 आ गया, FC2 आ गया आपका. तो अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ से आपका आ जाएगा S1. और सिमिलरली जब आप मैक्सिमम के लिए लेंगे तो ये आपका आ जाएगा S2. तो S1 S2 आ गया, यही आपको कैलकुलेट करना है. फिर स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग की अगर बात करें तो स्टिफनेस क्या होता है? स्टिफनेस इज इक्वल टू होता है स्प्रिंग लोड डिवाइडेड बाय डिफ्लेक्शन. या हम बोल सकते हैं कि स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? स्टिफनेस इनटू डिफ्लेक्शन. तो हमें स्टिफनेस कैलकुलेट करना है, तो स्टिफनेस इज इक्वल टू क्या होगा? लोड, स्प्रिंग लोड डिवाइडेड बाय डिफ्लेक्शन. अब डिफ्लेक्शन क्या है आपका? बेसिकली डिफ्लेक्शन है स्प्रिंग का जो हाइट है उसकी, जितनी स्लीव लिफ्ट हो रही है. तो स्लीव लिफ्ट कितनी है? 15. S2 और S1 की वैल्यू आपकी आ चुकी है, आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो ये आपकी स्मॉल s की वैल्यू आ जाएगी विच इज 19.8 न्यूटन पर mm. ये आपका आ गया स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग. सो इस तरीके से हम हार्टनेल गवर्नर करें. इसमें आपकी कंडीशंस अलग अलग हो सकती हैं, लाइक आपकी जो पोजीशन है, आर्म की पोजीशन. यहाँ पे तो आपकी मिनिमम स्पीड के केस में आपको दिया था कि आपकी जो वर्टिकल आर्म है वो पैरेलल है. अगर नहीं गिवन होगा तो वो आपकी कुछ कंडीशंस होगी, उस कंडीशन में आपके अलग फॉर्मूले, मतलब फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, जो आपकी R1 की वैल्यू है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट करनी पड़ेगी. तो बेसिकली ये आपका स्टिफनेस आ गया और स्प्रिंग फोर्स आ गए मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड के करस्पॉन्डिंग. Now we will solve one more numerical which is also based on the Hartnell governor. So in this numerical what is given? In a spring loaded governor of the Hartnell type, the mass of each ball is 1 kg. Length of the vertical arm of the bell crank lever is 100 and that of the horizontal arm is 50 mm. The distance of the fulcrum of each bell crank lever is 80 mm from the axis of rotation of the governor. The extreme radii of the rotation of the balls are 75 mm and 112.5 mm. The maximum equilibrium speed is 5% greater than the minimum equilibrium speed, which is 360 rpm. Find neglecting obliquity of arms, initial compression of the spring and equilibrium speed corresponding to the radius of rotation of underarm. देखिए ये पर्टिकुलर जो न्यूमेरिकल है विच इज डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रीवियस वन. इसमें आपको देखिए क्या क्या गिवन है. उसमें हमें रेडियस ऑफ रोटेशन नहीं दी थी, लेकिन इसमें हमें स्पीड भी दी हुई है और हमें रेडियस ऑफ रोटेशन भी दी हुई है. रेडियस ऑफ रोटेशन देखिए यहाँ पे क्या गिवन है? 75 mm and 112.5 mm. This is minimum and maximum radius of rotation. और maximum equilibrium speed is the 5% of the minimum equilibrium speed, which is 360 rpm. तो this is the minimum, which is n1. So इसके corresponding omega 1 निकालेंगे और similarly उसका 5% हायर है आपकी मैक्सिमम इक्विलिब्रियम स्पीड, तो 5% इंक्रीज कर देंगे. तो इस तरीके से हम वैल्यूज निकालेंगे. देखिए बाकी के नोटेशन सेम जैसे कि हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में यूज किया और हम हार्टनेल गवर्नर के केस में सेम होगा. 2 बेल क्रैंक लीवर होंगे, स्प्रिंग होगा, स्प्रिंग फोर्स S1 S2 से डिनोट करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम FC1 FC2 से डिनोट करेंगे. एक्स वाई आपकी x जो है वो वर्टिकल आर्म लेंथ या फिर बॉल आर्म लेंथ है, y आपकी हॉरिजॉन्टल आर्म लेंथ या फिर स्लीव आर्म लेंथ है.
आर जो है वो फल्क्रम की डिस्टेंस है गवर्नर एक्सिस से, विच इज यहाँ पे विच इज गिवन द डिस्टेंस ऑफ द फल्क्रम ऑफ द ईच बेल क्रैंक लीवर इज 80 mm। ये आपको न्यूमेरिकल में ऑलरेडी गिवन है, तो आर की वैल्यू आपको गिवन है 80 mm। R1 और R2 दैट मीन्स मिनिमम रेडियस ऑफ रोटेशन, मैक्सिमम रेडियस ऑफ रोटेशन, ये इस न्यूमेरिकल में गिवन है। प्रीवियस वाले में ये चीज नहीं दी थी हमें। ओमेगा 1 हम निकाल लेंगे 37.7। मैक्सिमम के लिए अगर हम बात करेंगे तो देखिए ओमेगा 2 सिंस द मैक्सिमम इक्विलिब्रियम स्पीड इज 5% ग्रेटर देन द मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड ओमेगा 1। सो ओमेगा 2 की वैल्यू देखिए यहाँ पे ओमेगा 2 की जो वैल्यू है वो आएगी आपकी 1.05 इंटू 37.7। तो 1.05 आप पुट कर दीजिए क्योंकि 5% ज़्यादा है, तो 1.05 होगा इंटू 37.7 क्योंकि ये आपके ओमेगा 1 की वैल्यू है। तो ओमेगा 2 क्या है, ओमेगा 2 इज 5% ग्रेटर देन द ओमेगा 1, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 39.6 रेडियन पर सेकेंड ओमेगा 2 की वैल्यू। जब ओमेगा 1 आ गया ओमेगा 2 आ गया तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालना है। तो FC1 निकालेंगे, FC2 निकालेंगे। FC1 जो होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा आपका मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड में, और FC2 होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट मैक्सिमम इक्विलिब्रियम स्पीड पे। R1 R2 दिया है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 आपको अभी आपने फाइंड आउट कर लिया है। m स्मॉल m मास ऑफ द फ्लाई बॉल विच इज 1 kg गिवन इन द न्यूमेरिकल। सो यहाँ से वैल्यू पुट करके हम FC1 और FC2 की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर हमें निकालना है इनिशियल कंप्रेशन। अभी मैंने बोला था आपको कि जब भी कभी इनिशियल या फाइनल कंप्रेशन की बात आएगी स्प्रिंग में, तो इनिशियल कंप्रेशन मतलब जब आपकी स्प्रिंग मिनिमम स्पीड से लिफ्ट हो रही है। बेसिकली जब मिनिमम कंडीशन पे है उस टाइम पे जो स्प्रिंग फोर्स है उसके करस्पॉन्डिंगली जो आपका कंप्रेशन आएगा या डिफ्लेक्शन आएगा वो होता है बेसिकली आपका इनिशियल कंप्रेशन। और फाइनल S2 के करस्पॉन्डिंगली जो आएगा वो होगा आपका फाइनल कंप्रेशन। तो ये वैल्यू निकालने के लिए हमें S1 S2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब S1 S2 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, S1 क्या है, स्प्रिंग फोर्स करस्पॉन्डिंग टू ओमेगा 1 या मिनिमम स्पीड, S2 इज द स्प्रिंग फोर्स करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम स्पीड और ओमेगा 2। तो हम S1 S2 प्रीवियसली हमने जो फॉर्मूले अभी देखे, जो हमने हार्टनल गवर्नर का जब डेरिवेशन किया था तब भी हमने यही डेराइव किया था, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे mg प्लस S1 इज इक्वल टू 2FC1 इंटू एक्स बाय वाई। तो FC1 कैलकुलेट कर चुके हैं, x और y की वैल्यू हमें पता है, तो हमें यहाँ से आ जाएगा S1 की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको कहीं पे भी सेंट्रल लोड की बात नहीं की है, किसी भी मतलब इस न्यूमेरिकल में भी नहीं की, इससे प्रीवियस वाले में भी नहीं बोला था कि मास ऑफ द स्लीव या स्प्रिंग का कोई फोर्स, ऐसा कहीं पे भी कोई वर्ड यूज नहीं किया था। दैट मीन्स कैपिटल M जो है विच इज 0, क्योंकि न्यूमेरिकल में गिवन नहीं है। अगर इसका वैल्यू कुछ गिवन होती कि मास ऑफ द स्लीव या स्प्रिंग वेट इज दिस, तो हम उसकी वैल्यू पुट करते, पर यहाँ में नहीं दिया है, तो कैपिटल M इज इक्वल टू होगा 0 आपका। प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी यही चीज थी। तो यहाँ से हम S1 निकालेंगे विच इज 426.4 न्यूटन। सिमिलरली मैक्सिमम की कंडीशन में यहाँ पे FC2 हो जाएगा, तो S2 आ जाएगा 705.6 न्यूटन। तो ये आपका S1 S2 आ गया विच इज द स्प्रिंग फोर्स, which is calculated on the basis of the derivation of the Hartnell governor। तो यहाँ पर हमने m की वैल्यू 0 इसीलिए पुट की है क्योंकि हमें न्यूमेरिकल में ये वैल्यू गिवन नहीं है। अगर ये वैल्यू दी होती तो हम यहाँ पर m की वैल्यू पुट करते, अगर नहीं दी है तो हम इसकी वैल्यू 0 मान के चलेंगे। अब जब हमारे पास S1 S2 आ गया तो हमें लिफ्ट ऑफ द स्लीव, अभी हमने डिस्कस किया था कि लिफ्ट ऑफ द स्लीव स्मॉल h से डिनोट करते हैं विच इज इक्वल टू R2 minus R1 into y by x। y आपको पता है, x पता है, क्योंकि y is the horizontal arm length and x is the vertical arm length। R2 R1 आपको ऑलरेडी पता है, तो यहाँ से आप स्लीव का लिफ्ट निकाल लोगे। जब स्लीव का लिफ्ट आ जाएगा तो आप यहाँ से फिर स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग निकाल सकते हो। बिकॉज हमें स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग क्यों निकालना है, क्योंकि हमें इनिशियल कंप्रेशन निकालना है। इनिशियल कंप्रेशन तो हम बोल सकते हैं इनिशियल डिफ्लेक्शन निकालना है बेसिकली स्प्रिंग के केस में। तो उस कंडीशन में हमें क्या चाहिए, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू होता है स्टिफनेस इनटू डिफ्लेक्शन। अब स्टिफनेस हमें पता करने के लिए हमें स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग पता है, स्मॉल s इज इक्वल टू होता है S2 माइनस S1 अपॉन h। S2 S1 आपने कैलकुलेट कर लिया है, वैल्यू पुट कर देंगे 705.6 माइनस 426.4 इज इक्वल टू 0.01875। h की वैल्यू यहाँ पे हमने अभी कैलकुलेट की है।
तो यहाँ से हमें स्टिफनेस आ जाएगा। जब स्टिफनेस आ जाएगा तो हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारा इनिशियल कंप्रेशन, अब हमें इनिशियल निकालना है इसलिए हम यहाँ पे S1 पुट करेंगे। अगर हमें फाइनल कंप्रेशन निकालना होता तो हम यहाँ पे S2 पुट करते। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि आपको कौन सा कंप्रेशन पूछा गया है। सेकेंड पार्ट जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है इक्विलिब्रियम स्पीड करेस्पॉन्डिंग टू रेडियस ऑफ रोटेशन 100 mm। आपको एक पर्टिकुलर रेडियस ऑफ रोटेशन दे दिया है 100 mm। इस रेडियस ऑफ रोटेशन के करस्पॉन्डिंगली आपको इक्विलिब्रियम स्पीड फाइंड आउट करनी है। इसके लिए भी हमने जब हार्टनेल गवर्नर का डेरिवेशन किया था तो हमने एक केस डिस्कस किया था कि अगर मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में कोई कंडीशन होगी तो हम उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, इस फॉर्मूले का डिस्कशन भी मैं कर चुकी हूँ आपसे जब हमने डेरिवेशन किया था। तो यहाँ पे अपन ने एज्यूम कर लिया कि FC जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से करस्पॉन्डिंग टू रेडियस ऑफ रोटेशन 100। At this radius of rotation, the equilibrium speed will be capital N। तो यहाँ पे हमें अब ये जो वैल्यू है वो FC1 से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें कैसे पता चला FC1 से ज़्यादा है, क्योंकि हमारी R 100 mm है विच इज़ इन बिटवीन द 75 mm एंड 112.5 mm, इन दोनों के बीच में है। तो ऑब्वियसली हमारी मिनिमम से ज़्यादा हो गई है और मैक्सिमम से कम है। बीच में मिडिल पोजीशन होती है, ये कोई भी मिडिल एग्जैक्टली नॉट मिडिल, मतलब इन बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम रेडियस के बीच की पोजीशन होती है। तो ये फॉर्मूला ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे आपकी सारी वैल्यूज गिवन है एक्सेप्ट आपको FC यहाँ से मिल जाएगा 153 न्यूटन और फोर्स FC विच इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू होता है m ओमेगा स्क्वायर r, वेयर r is 100 mm, it is given, ओमेगा we have to calculate and small m is the mass of the fly ball। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे m ओमेगा स्क्वायर r। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.0011 n स्क्वायर। तो n की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं 373 rpm। So this is all about Hartnell governor and Proel governor. So thank you so much. Thank you.